Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to talk about our journey from Jagannath Puri to Pashupatinath. As you can see, we are already on the Puri beach and we visited quite a few places. So let me tell you all about it, the do's, the don'ts, and what to expect on this journey. Stay tuned and take care. Thank you. We flew from Mumbai to Bhubaneswar and by road we went to Puri. We stayed 2 days in Puri and took the train to Calcutta. We stayed 2 days in Calcutta and then we moved to Darjeeling by road. From there, after staying 2 days, we went by road to Kathmandu to the Sonali border. And then from Kathmandu, after staying 2 days, we went to Pokhara. After Pokhara, we stayed 2 days and we went to Gorakhpur. We passed by and took the train from Gorakhpur to Varanasi, from where we flew back. To cover a trip of this size would make this video very long. Hence, I'm going to divide this into 5 chapters. The first chapter is going to be Puri, where we have covered the Lingaraj temple, the Konark temple, as well as the Nandankanan Zoo. The second chapter will be Calcutta. The third chapter will be Darjeeling. The fourth chapter will be Nepal. And the fifth chapter will be Varanasi, where I can cover Varanasi extensively. So please do bear with me and stay tuned, and we will give you everything in due course. Thank you. Puri is a land meant for devotees, especially around the Jagannath temple. Sites like these are common. But the local people also come out and they go to the beach and various other places. Right near the temple, there is no non-veg allowed. And so, before I tell you about the Jagannath temple and everything that we did in Puri, take a last look at the beach and the beautiful waves. And we'll talk to a person called Ram Kumar Daltapati. He's a panda. Pandas are people who work with the temple, Jagannath temple. Conversation with a gentleman called Ram Kumar Daltapati, and he has been working with the temple for many years. Let's try and understand from him what his work entitles and what people should look for when they come to the Jagannath temple. तो बताइए आपका पूरा नाम और एक बार कैमरा नाम राम कुमार दैतापति। हाँ, मैं पूरी जगन्नाथ मंदिर का सेवायत पंडित हूँ। अच्छा, ये कई ज़माने से हम लोग इधर है, जगन्नाथ जी जब से है हम लोग उनका सेवा उसी दिन से कर रहे हैं और रिलेशन है जगन्नाथ जी का साथ। तो मिस्टर दलतापति, आप ये बताइए कि आपका ये खानदानी है या आपको अच्छा लगा उसके लिए आप ये लाइन में आए? नहीं, ये मेरा खानदानी है। मेरा पिताजी, उसका पिताजी, उसका पिताजी, ये जब से जगन्नाथ जी है तब से हम सेवा करते आए हैं। सेवा में लगे हैं। तो आप ये बताइए कि जो लोग मंदिर में आते हैं वो क्या खासियत है जगन्नाथ के बारे में, कुछ आप पुराना बता सकेंगे, हिस्ट्री बता सकेंगे, और लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वो लोग आते हैं मंदिर को? ये भारतवर्ष में चारों धाम है। चारों धाम से जगन्नाथ धाम मुख्य धाम है और यहाँ चारों धाम का नाम तो आप सब लोग जानते हैं। हाँ। यहाँ द्वारका है, हाँ। रामेश्वरम है, हाँ, आपका बद्रीनारायण और जगन्नाथ। ये चारों धाम से जगन्नाथ धाम मुख्य धाम है। यहाँ भगवान चारों मूर्ति यहाँ बैठे हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन। अच्छा, और ये चारों को दर्शन करने से भी चारों धाम का दर्शन हो जाता है। अच्छा। ये एक ही जगह है, यहाँ लकड़ी में बने हैं भगवान। अच्छा, हर जगह में हाँ, पत्थर में होता है, कोई धातु में होता है, पीतल में होता है, चांदी में होता है, लेकिन यहाँ लकड़ी में। और ये नीम का पेड़। नीम का पेड़। हाँ, ये जो अलग अलग धातु में जो बनता है, जो स्टोन में या पीतल में या अष्ट धातु में बनता है हाँ। मूर्ति, ये पानी में डूब जाएगी। अच्छा, लेकिन ये जो जगन्नाथ जी जो रूप लेके आए हैं, ये हाँ। लकड़ी में, ये पानी में भस सकते हैं। अच्छा, ये इसीलिए आए हैं, जो भगवान का जो 24 अवतार है, हाँ, ये 24 अवतार में जगन्नाथ जी का अवतार नहीं है। अच्छा, कई
युगों में कई कई समय में भगवान को पुकारना पड़ता है जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ। तो भगवान जन्म ग्रहण करके आते हैं, राम जी आए हैं, कृष्ण जी आए हैं, हाँ। अवतार लेके आए, लेकिन जगन्नाथ खुद आए। अच्छा, तो ये ये जगन्नाथ 24 अवतार में नहीं, खुद आए। और ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है, ये जो मत्स्य मंडल में हम लोग रुके हैं, हाँ। हमारे साथ आनंद लेने के भगवान इधर पधारे। अच्छा, तो ये मंदिर कभी बना था? ये मंदिर है कम से कम 800 साल 1800 ईयर्स का रिपेयरिंग चालू हुआ था। अच्छा उसके पहले का मंदिर। अच्छा। और मैंने सुना है यहाँ जब रथ यात्रा होती है तो इनके यहाँ के राजा स्वयं आके झाड़ू लगाते हैं रथ के सामने। तो ये रथ यात्रा के बारे में आप थोड़ा हमको विशेष। ये जो रथ यात्रा है, ये जगन्नाथ जी जो मैंने बताया चारों भगवान बैठे हैं, ये साल में एक बार निकलते हैं भगवान बाहर आने के लिए। सब भक्त, क्योंकि मंदिर का अंदर प्रति भक्त हर देश का भक्त नहीं जा सकते, इसलिए कुछ लोग के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है मंदिर को जाने के लिए। हाँ। तो भगवान सबका भगवान है, इसलिए वो खुद भक्त के लिए बाहर आ जाते हैं। अच्छा। जैसे सब लोग दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये रथ यात्रा कहाँ से कहाँ होता है और क्यों होता है ऐसा? ये रथ यात्रा जगन्नाथ सिंह मंदिर, श्री मंदिर से हाँ। गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा होता है। पर गुंडीचा मंदिर ही क्यों? ये गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा जो है नाम है गुंडीचा। हाँ। ये इंद्रजम्न राजा जो मंदिर बनाए थे, हाँ। उनका रानी का क्वीन का नाम है इंद्रजम्न, गुंडीचा रानी। अच्छा। तो उनके नाम यात्रा रखा गया है। अच्छा। जब ये भगवान को इंद्रजम्न राजा ने स्थापना किए थे, हाँ। तभी भगवान ने उनको बोले कि तुम कुछ मांगो, हाँ। कुछ वर चाहिए तो मैं हाँ। दे सकता हूँ। हाँ। तो राजा ने बोला ऐसे वर दियो जो हमारा वंश में कोई नहीं रहेगा। अच्छा। जगन्नाथ जी तथास्तु बोले। अच्छा। तो माता गुंडीचा ने बोला, माता गुंडीचा को भी पूछा क्या तुम क्यों चाहते हो? हाँ। ना मेरा बेटा चाहिए। हाँ। तो उनको भी तथास्तु बोले जगन्नाथ जी। हाँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ। राजा को बोले कोई नहीं रहेगा, हाँ। और गुंडीचा रानी बोले देखो आपने तो ऐसे बोल दिया कोई नहीं रहेगा, फिर मेरे को बोले बेटे होने के लिए आशीर्वाद दे दिया। नहीं, मैं खुद आऊँगा तुम्हारे लिए 9 दिन यात्रा करने के लिए। इसलिए रथ यात्रा को यहाँ पर श्री गुंडीचा यात्रा कहते हैं। अच्छा। ये गुंडीचा देवी के लिए वो 9 दिन वहाँ भगवान पधारते हैं। अच्छा। अच्छा प्रभु जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो झंडा लगता है ऊपर मंदिर के ऊपर, इसका भी कुछ खास महत्व है? ये झंडा जो उड़ता है, ये झंडा जैसे आदमी का शरीर है, शरीर के ऊपर मस्तक है, मस्तक पर कपाल है, कपाल के ऊपर हेयर है, हाँ। हेयर के बीच में ब्रेन है। हाँ। जैसे औरत लोग रिबन बांधते हैं, हाँ। ऐसे मंदिर में झंडा जब उड़ता है, हाँ। तो मंदिर सौंदर्य लगता है। अच्छा। और पर भक्त लोग को ऐसे हिल हिल के बुलाता है, इधर आइए भक्त लोग को बुलाता है। अच्छा, ये अच्छा लगा हमें। और ये मंदिर का ये जो आप बोलते हैं कि लकड़ी से बना है, मैं सुना हूँ कि कुछ सालों में ये चेंज होता रहता है और नया पेड़ मिलता है। मैंने बोला ना, जैसे खुद आए हैं और हम लोग का जो मनुष्य का शरीर मिला है। हाँ। तो आदमी का शरीर के वो हमारे साथ आए हैं, तो मृत्यु में जो ही आता है मृत्यु और जन्म लेके आता है। अच्छा। तो भगवान का भी शरीर चेंज होता है। अच्छा, तो ये जो चेंज होता है तो आप कैसे ये तय ये करते हैं कि भगवान कौन सा जैसे- पेड़ क्या है, कैसा काटेंगे, कौन काटेंगे, कौन बनाएगा? जैसे हमारा शरीर में आत्मा है, ऐसे जगन्नाथ जी का अंदर में ब्रह्म है, चारों अच्छा। भगवान का अंदर में। अच्छा। तो ब्रह्म को चेंज किया जाता है। अच्छा। ये कम से कम 19 साल के बाद, हाँ। जब 2 आषाढ़ का महीना आता है, हाँ। पुरुषोत्तम महीना, हाँ। आषाढ़ का महीना पुरुषोत्तम महीना जब भी आएगा, तो हाँ। भगवान का आत्मा चेंज होगा। अच्छा। तो नया भगवान को ढूंढ के लाना पड़ेगा। हाँ। जंगल जाना पड़ेगा। हाँ। वो पेड़ लाना होगा, नीम का पेड़, उसमें शंख चक्र गदा पद्मों का सिंबल रहेगा। हाँ। वही पेड़ सिलेक्ट करके लाना होगा। हाँ। और ये वहाँ पर यज्ञ होगा, भगवान फिर उधर बनाना होगा। हाँ। बना के फिर भगवान का सामने रखा जाएगा। हाँ। भगवान का शरीर से नया पुराना शरीर से नया शरीर को ब्रह्म ला के रखा जाएगा। अच्छा। तभी नया कलवर हो गया और पुराना शरीर को समाधिस्थ करते हैं। अच्छा। अच्छा प्रभु जी, ये अभी ये जो पुराना फिर रहता है जो आप लोग चेंज करते हो 19 साल में, ये कहाँ जाता है?
ये समाधि हो जाता है ना, नीचे माटी के 60 अच्छा। फुट गाढ़ा होता है, हाँ। 60 फुट के अंदर दिया जाता है, रखा जाता है। अच्छा। वही मंदिर में वही सेम जगह हाँ। दूसरे नवकलेवर के जब निकालेंगे हाँ। कुछ नहीं मिलता है। अच्छा प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन, जब भक्त आते हैं दूर दूर से आते हैं आपका मंदिर में, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या जगह जगह जाना चाहिए जगन्नाथ मंदिर के अलावा? ओके, और जगन्नाथ मंदिर के अंदर जब प्रवेश कर रहे हैं तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो भगवान के पास आएंगे पहला तो ये आपको भगवान का जो रस्सी लगेगा तभी आप इधर आ सकता है, अच्छा। नहीं तो नहीं आ सकेंगे। और अच्छा। जो भी आता है उनका मन में भाव और भक्ति लेके भगवान के पास आना चाहिए, अच्छा। तभी उनका फल मिल जाता है। अच्छा, तो उनको कुछ खास ध्यान रखना चाहिए जब मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं? मंदिर में प्रवेश करने से पहले उनका शरीर में कोई गहना कटी नहीं रहना चाहिए, अच्छा। रुपया को सावधान रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, और ऐसे देखो कुछ खाली खुला मन में आना चाहिए। जगन्नाथ जी 2 हाथ खोल के बैठे हैं और वो हम भी खुल के जाएंगे तो हम और वो मिल लेंगे। अच्छा। वो खुले आओ मिलते हैं, 2 हाथ खोल के बैठे हैं। अच्छा प्रभु जी, एक लास्ट क्वेश्चन, ये जगन्नाथ मंदिर के अलावा आपका जगन्नाथपुरी में और कोई मंदिर है जिनका महत्व है, जिनको भक्त लोग को जाना चाहिए? हाँ हाँ, जगन्नाथ का मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर है, 81 टेम्पल है छोटा बड़ा होके। ओके। हाँ, सबको आप घूम के देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कोई खास आप बोल सकते हैं? लेकिन झंडा जगन्नाथ जी का मंदिर में उड़ता है और प्रसाद जगन्नाथ जी को लगता है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Whenever my wife and I travel to any location, we try to take the local transport, as tourism is a means of livelihood for these people also, and we got to encourage it. So over here I took this cycle rickshaw around the temple, as videography and shooting is not allowed inside the temple. If you look onto the right hand side, there are barricades. This is almost 500 meters before the temple, and this barricade is to basically check your second vaccination certificate. All right, and you once they check it, you go on to the next step where they scan the certificate. They scan the barcode and they let you through to the temple. The third check-in point will be to check if you're carrying any camera, any cigarettes, any illicit items into the temple, or that is a security check where they frisk you. Besides all the information given by Mr. Ram Kumar Dalpati, the panda and the temple, I would like to add a few things of my own. The present temple was built in the 10th century on top of the previous temple that was over here, and the temple is a Hindu temple dedicated to Krishna in its form of Jagannath. This temple was built by Ananta Varmaman Chodaganga Deva. He was the first king of the Eastern Ganga dynasty. The special prasad and the favorite of the temple or the deity, the Jagannath deity, is the khaja. It's a sweet toast-like biscuit which is dipped in sugar with a sugar coat. This is unique only to this temple. So to tell you exactly what we learnt about the Jagannath temple, it is one of the Charadham Yatras where once you do this, it seems that you have covered all the Charadhams. The 3 deities inside are Jagannath, Baldev, Subhadra. The deities are made of wood, especially neem tree wood, with special signages of the Sudarshan Chakra on it. The Rath Yatra is once a year and it goes from the Jagannath temple to the Gundecha temple. The deities are changed every 12 to 19 years. There are 81 temples inside the Jagannath temple premises itself. This temple was built in the 10th century, rather rebuilt over the old temple in the 10th century. And Khaja is a special prasad offering to the deity, as it's a favorite of the deity.
Finally, before entering the temple, if you need to leave your footwear and your cell phones, then the neighboring shops are there that will take care of this for you. You can leave it in groups or you can leave it as individuals also. We have tried to give you as much as information as possible on the Jagannath temple. If we have left out anything, we do apologize. And we are very grateful to Ram Kumar Dalpati, who has given us quite a lot of information on this temple. The next place we visited was the Lingaraj temple. So let me get you into the Lingaraj temple and tell you everything about it. Over there also I have done the survey from the outside, and as video photography is not allowed inside. So let's go to the Lingaraj temple. Welcome to the Lingaraj temple. This is supposed to have been built in the Kalinga dynasty and later on taken over by the Ganga dynasty. It is said to have been built by Somavamsi dynasty and later on taken on by the Ganga dynasty. The temple has 4 structures. One is the Vimana, where this is the Santurnam. The second is the Jagmohana, which is the assembly hall. The third is the Natya Mandir, which is the festival hall. And the fourth is the Boga Mandap, which is the offering hall and dining hall of the lords. The tank that you see is known as Bindu Sakar. This is nourished by an underground river and is said to be sacred and said to have cured diseases and illness, and people do take a bath during festival occasions before they go into the temple. The Lingaraj temple is situated in the Ekamra Kshetra of Bhubaneswar. The deity was to have been found under a mango tree. It has a form of Shiva and Vishnu together, and that's why in Hinduism it is worshipped both by Shivites and Vishnuites together. The form of Vishnu and Shiva together is known as Harihara. The word Lingaraja means Lingo ka Raja. Welcome to Nandankanan Zoo. Nandankanan Zoo is one of the most beautiful zoos I ever visited. This is one zoo that takes almost 3 hours to actually cover every part of it, and it's absolutely worth it. What you're seeing in front of you is the white tiger, the only place in India you can see it walking about freely. Nandankanan Zoo does have a lot of safaris, the lion safari, the tiger safari, the bear safari, and you can actually go for a ride into this in a caged bus. There are tickets for entering the zoo, there are tickets for riding on the buggy to go around in the zoo, and there are tickets also separately for the caged bus for the safari. This is absolutely worth it because this was the only place I saw a white tiger, a normal tiger, and a dark black tiger, all 3 in the same place in neighboring enclosures. Besides the tigers and the safari, there are a lot of free attractions that are there. For instance, the crocodiles and the reptiles, the monkeys, the birds. The white tiger is free to see because it is roaming around in the open. And there are deers that will run across when you are there in the zoo itself. You can actually ride this buggy, the bus, that will seat a lot of people. It's, I think, about 20 to 25 people. Or you can walk about and take in the entire zoo leisurely. Our next stop will be the Konark temple before we head back to Puri to take the train to Calcutta. Welcome to Konark, and let us hear from our guide Karthik Kande,
who is an expert on the Konark temple. प्रभु जी एक बार आपका नाम बताइए। मेरा नाम घर कार्तिक कंडी। हाँ, और आप ये कब से गाइड है? अच्छा, हम तो बचपन से है। ये गाइड काम करने का हमारा 32 साल हो गया। अच्छा, सर अभी आप लोग को ये जो जगह का नाम सुनका या कोणार्क सूर्य मंदिर बोलते हैं। तो 800 साल का पहले ये जगह का नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा इंडिया में दोनों जगह है, एक होता महाराष्ट्र पंढरपुर में और यहाँ के ये नदी और समुद्र का संगम में ये मंदिर को उड़ीसा का राजा नरसिंह देव ने बनाया था। नरसिंह देव थे प्रथम गंगा वंश का राजा था, गंगा डायनेस्टी। अच्छा, 1238 में शुरू किया, 1250 में मंदिर कंप्लीट। ये 1200 कारीगर को 12 साल टाइम लगता था इसको बनाने के लिए। ये कंपाउंड होते 12 एकड़ जमीन, 12 एकड़ में राजा बनाया था 4 मंदिर। तब ये जो पहला वाला मंदिर का पर आदमी लोग को खड़ा है, इसको बनाया था देवदास नाचने के लिए, ये डांसिंग याद। हाँ, ये जो बड़ा मंदिर आप लोग देखते हैं ये मेन मंदिर नहीं है, अच्छा, वो वाला था प्रार्थना मंदिर। अच्छा, इनका हाइट था 150 फीट, कॉलस टूट गया, हाँ। अभी 127 फीट। अच्छा, ये प्रार्थना मंदिर का पीछे था मेन मंदिर, हाँ, 227 फीट और ये 100 फीट लंबा था। अच्छा, तो मेन मंदिर का पीछे सन का वही छायादेवी मंदिर। अच्छा, सर जी राजा बनाया नदी और समुद्र का संगम में मंदिर। हाँ, तो नदी और समुद्र अभी दोनों हट गया 3 किलोमीटर। हाँ, अभी आप लोग को पूरी जाएंगे, हाँ। समुद्र का किनारे किनारे जाएंगे, पूरी जगन्नाथ जी का मंदिर। हाँ, यहाँ से अभी सी बीच 3 किलोमीटर चला गया। सर राजा ने मंदिर को यहाँ पर क्यों बनाया, क्यों पूजा नहीं होता, मैं इसका हिस्ट्री बताएंगे। अच्छा, राजा ने जो मंदिर बनाया सूर्य के एंगल में, हाँ, कारण इंडिया में दोनों जगह में सूर्य उदय होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं। हाँ, कन्याकुमारी में सूर्य अस्त होते हैं, ये होता सूर्य का उदय स्थान, सनराइज प्लेस। मैडम जी ये देखो, ये होता हमारा पूरब दिशा। जब सुबह सूर्य उदय होते हैं, सूर्य का पहला किरण सीधा चला जाता मूर्ति का फेस पर। अच्छा, मेन मंदिर का गर्भगृह का अंदर सूर्य भगवान का मूर्ति था अष्ट धातु का। सूर्य का पहला किरण मूर्ति का फेस पर गिरने से मूर्ति रिफ्लेक्शन लाइट होता, प्रकाश करते थे। आदमी लोग को सोचते थे कि सुबह मंदिर का अंदर उदय होते सूर्य, ऐसा मालूम होता रिफ्लेक्शन। सूर्य एक मिनट सूर्य सीजन का हिसाब से मैं टाइम दे दिया, मैं टाइम के अंदर घुमा के लेके आ जाएंगे। सूर्य सीजन का हिसाब से निकलते, एक जगह में नहीं। आप लोग को थोड़ा नजर करिए, पहला वाला मंदिर का पर देखिए 3 गेट है, बीच में आदमी लोग को जा रहे हैं, दोनों साइड में 2 गेट में आदमी खड़ा है। हाँ, सूर्य दक्षिणायन होते हैं, हाँ, मध्यायन होते हैं और उत्तरायण होते हैं। अच्छा, गर्म 4 महीना, बारिश 4 महीना, ठंडी का 4 महीना। हाँ, मैंने कहीं पर भी निकलेगा तो पहला किरण आ जाएगा मूर्ति का फेस पर। अच्छा, इसलिए सारे जगह का नाम होते कोणार्क। उत्तरायण होते, दक्षिणायन होते, कोणों से निकलते हैं। कोण मीनिंग होता है एंगल, अर्क मीनिंग होता है सन। सूर्य को संस्कृत अर्क बोलते हैं, अच्छा, इसलिए एंगल ऑफ सन। अच्छा, राजा इसलिए जगह का नाम रखा कोणार्क। अच्छा जी, इनका एक छोटा सा इतिहास, कहना अंदर से मूर्ति के बारे में सब समझाएंगे, दिखाएंगे। हाँ, तो इनका इतिहास पहले समझ लीजिए। राजा ने मंदिर को यहाँ पर क्यों बनाया? सर बनाया था पूजा के लिए, तो मंदिर में पूजा क्यों नहीं होता? ये छोटा सा इतिहास, ये द्वापर युग का कहानी महाभारत। द्वारिका का राजा था श्री कृष्ण भगवान, इनका बेटा का नाम था शाम, माता इसका नाम था जाम्बवती। जाम्बवती का बेटा होता शाम। पिताजी इनको श्राप दिया, लड़का कुष्ठ रोग हो गया। अच्छा, कुष्ठ रोग अच्छा होने के लिए शाम ने यहीं पर आके चंद्रभागा नदी का किनारे में ठहर के 12 साल सूर्य को आराधना किया। एक रोज शाम चंद्रभागा नदी में स्नान करने का टाइम से कोई नदी से सूर्य नारायण का मूर्ति शाम को मिल गया। से मूर्ति तो अष्ट धातु का, जो मूर्ति मिल गया, शाम ने मूर्ति यहीं पर रख के मूर्ति को प्रतिष्ठा करके पूजा करते थे। पूजा करने का टाइम से पहले जो रूप थे वापस आ गया और इनका कुष्ठ रोग वो भी ठीक हो गया। इसका बाद में राजा नरसिंह देव का माँ सूर्य का उपासना करके नरसिंह देव को पैदा किया। पहले बच्चा उच्चा नहीं था। नरसिंह देव बड़ा हो गया, माँ ने बोला बेटा सूर्य का पूजा करके तुमको पैदा किया, इसका नाम से जाके मंदिर बना दो। इसलिए राजा ने यहाँ के 1200 कारीगर को टाइम दे दिया ये मंदिर को 12 साल में कंप्लीट करने के लिए। बोलते 12 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करेगा तो हाथ पैर काट दिया जाएगा। वही ऑर्डर दे दिया राजा। कारीगर लोग को संसार छोड़ दिया, 12 साल तक घर में गया नहीं। खाने के लिए 40 करोड़ गोल्ड सोनो मोहरा खर्चा करता, 12 साल के रेगो ने। तो बनाने का टाइम था 800 साल का। पहले चूना सीमेंट का काम नहीं था, पहले पत्थर को जोड़ने के लिए
आयरन का लोहे का कलम लगाया था। तो मेन मंदिर का लास्ट टाइम एक कलश नहीं फिटिंग कर सकता कारीगर लोग। कलश को बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, चुंबक। मैंने चुंबक रखा था जो हर पत्थर में लोहे के कलम लगाया था इनका बैलेंस रखने के लिए। अच्छा। कोई कारीगर लोग को फिटिंग नहीं कर सकता। 12 साल खत्म हो गया, एक रात बाकी है पूरा होने के लिए। एक रात में नहीं बैठेगा, सुबह रात 12 उस कारीगर को पनिशमेंट दे देगा। तो उसी टाइम पर इनका हेड कारीगर था विश्व महाराणा, हेड आर्टिस्ट। 12 साल का लड़का था धर्मपद। और बच्चा ना के बोलते पिताजी मेरे को आदेश दीजिए मैं बैठा दूँ। सोच लीजिए पिताजी आया था मंदिर बनाने के लिए, पिताजी तो 12 साल तक घर में गया नहीं। आप बोलेंगे ना जो 12 साल तक पिताजी घर में नहीं तो बच्चा कहाँ से आएगा। सर ये भी इंटरेस्ट बात है, जिस टाइम पर पिताजी आया था मंदिर बनाने के लिए उसी टाइम पर माँ प्रेग्नेंट था। लड़का पैदा होकर इनको भी 12 साल होने के लिए बाकी है। तो माँ के पास में पूछ के लड़का आया था पिताजी को ढूंढने के लिए। आके यहाँ पर ऐसे पहचान हो जाके बोलते थे मेरे को आदेश दीजिए मैं बैठा दूंगे। पिताजी लड़के को ऑर्डर दे दिया। लड़का जाके 12 कारीगर को प्लानिंग देके कलश बैठा दिया। सुबह हो गया, 1200 कारीगर लोग देख के सोचते हैं जो हम लोग को 1200 आदमी काम जो नहीं कर सकता, छोटा 12 साल का बच्चा का प्लानिंग से हम लोग को बैठा दिया। जब वही बात अभी राजा लोग को मालूम हो जाएगा सर एक बच्चा का प्लानिंग से मंदिर बना हुआ, फिर राजा 1200 कारीगर कुछ न कुछ पनिशमेंट दे देगा। बोलेंगे आप क्या करते थे, बच्चा ने कर दिया। ऐसे सोच के राजा हमको पनिशमेंट दे देगा। इसलिए इनका पिता इसको पूछते 1200 कारीगर जो आपका बेटा क्या कर देना चाहिए ना हमारा 1200 कारीगर का जान चाहिए। सर पिताजी कुछ नहीं बता सकता। लड़का पास में खड़ा होकर बात सुनते थे। लड़का डिसीजन लिया जब मैं मर जाऊंगे मेरा पिता इसका साथ में ये 1200 कारीगर बच जाएगा। ऐसे सोच के लड़का मेन मंदिर का टॉप में जाके, इनका बगल में तो नदी था, तो टॉप से नदी का पर कूद के वो लड़का जान दे दिया। तो मंदिर बना दिया, लेकिन प्रतिष्ठा होने का पहले लड़का ने इनका पर सुसाइड किया। उसी टाइम पर मंदिर का पूजा बंद हो गया, अशुद्ध हो गया। अभी नहीं होता है। इसलिए पूजा नहीं होता। इसलिए तो मंदिर में चप्पल, कैमरा, मोबाइल सारे अलाउड है। अच्छा आइए इधर मंदिर में। Our guide was very good and he took us 2 hours to cover the entire temple. He had answers to everything and was very good at explaining the entire nuances of the temple, how it was built, the time of the day, what is where and why it is so. We really appreciate him, and it is always good to take a guide along with places like this who can explain things to you in detail. I could go on and show you everything that he said, but this is a 2-hour trip around the temple, and hence I am going to go into fast forward. So as the wonderful guide continues to explain the intricacies of the Konark temple to us, there are a few things you should know. First thing is always follow local greetings. We realize that in Odisha, the entire state, saying Jai Jagannath is a way of life. It is like saying good morning, good evening, good night. Understand local customs. For instances, the temple area was purely veg, but you do get non-veg on the beach and places away from the temple. So there are different customs in different places which we got to understand. Hire local people, as this means this is a livelihood for them, and you do not know what you will get cheap. For instance, we went for a ride on the cycle rickshaw and actually proved very nice and delightful. The fourth thing was map out the area where you want to go to. Not everybody that is taking you around knows the area, so map it out, check your routes, and then go, because the potential of getting lost is very high. Wear comfortable footwear. Like most travels, there is a lot of walking about to be done in Odisha. Especially on the Puri beach, you might have to remove your shoes, and if you want to go into the water, you might have to remove your shoes when you enter the temples also. But if you're going to Nandankanan and Konark, there's a lot of walking about and you need comfortable shoes. So the choice of footwear is very important over here. Last but not the least, carry bottled drinking water. Okay. And before I take you to Calcutta, please like, subscribe and press the notification bell for my videos. Thank you.